عید کو عید سمجھ کے گزارے، اپنا کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ ابا جی کی بڑا سمجھ کے نہیں۔ مل جل کے عید مناؤ، جو ضرورت مند جو لوگ ہیں نا رشتہ داروں میں خاص کر، آپ ان کو یاد رکھو، یہ میرا مین میسیج ہے۔ یار شاپنگ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو شادی شدہ ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی زندگی میں کوئی لڑکی ہوتی ہو۔ ہمارے تو خواب میں بھی لڑکی نہیں آتی یار، تو ہم کیا کریں یار۔ وہ دیکھو وہ دو کپل جا رہے ہیں یار، ان کو کوئی سمجھائے یار کہ اس مارکیٹ میں سنگل لوگ بھی ہوتے ہیں یار۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، پلیز ساڈے گھر والے ساڈا بیاہ کر دو، تہاڈی مہربانی، تہاڈا منڈا ہو جائے گا، نہیں تے تہاڈی مہربانی ساڈا بیاہ کر دو۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل لاہور۔ ناظرین، آج جو ہے وہ ہم لبارڈی میں موجود ہیں، یہاں پر لوگوں سے پوچھنے والے ہیں ہم کہ انہوں نے عید کی شاپنگ کر لی ہے یا نہیں کی، اور رمضان المبارک کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے اوپر کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو چلیں چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میم، اپنا نام بتائیے گا۔ انم شیخ۔ اچھا انم میم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے عید کی شاپنگ کر لی ہے یا نہیں؟ عید کی شاپنگ تو یار ہو گئی ہے، بٹ ایک دوپٹہ دیا وہ ہی نہیں مل رہا میرا۔ اگر وہ عید تک نہ ملا تو پھر مل جائے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ اگر وہ اعتکاف پر بیٹھ گیا ہوگا جس کو دیا ہے تو وہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا اعتکاف کے آخری روزوں میں کون بیٹھتا ہے؟ 3 روزوں میں میرے خیال سے بیٹھتے ہیں، بٹ ابھی تو ٹائم گزر گیا، ابھی نہیں بیٹھ سکتا وہ۔ نہیں بھی میرے خیال سے ابھی چانس ہے اعتکاف پہ بیٹھنے کا۔ نہیں ابھی وہ بیٹھے گا، ویسے بھی اس کا منہ سے نہیں لگتا تھا اعتکاف پہ بیٹھے گا۔ تو یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ تقریباً گزر گیا، ٹھیک ہے، تو یہ 25-26 جو رمضان کے روزے تھے، اس کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے اوپر کیا اثر پڑا ہے کہ کچھ چینج آیا ہے یا نہیں؟ یار مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال رمضان چلا جاتا ہے، تو وقت ہی ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم ایک ایسی قوم ہے جو کہ اس ایک مہینے میں کہتے ہیں برائی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، اس کو پھر وہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ زندگیوں پہ کوئی اثر پڑا۔ ہاں تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے کہ یار دکھ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ رمضان کی بہت خوشی ہوتی ہے، عید کی بھی بہت خوشی ہوتی ہے، بٹ وہ ہوتا ہے نا کہ ایک گناہ سے بچنا، وہ صرف ایک مہینے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ جو عید کے اوپر جو ہے وہ جو لوگ جو ہے وہ عید کی خوشی میں ون ویلنگس کرتے ہیں، یعنی کہ رولز فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ایک میسیج دے دیجیے گا۔ وہ اب میں کیا کہوں، ان کو میں کچھ غلط کہہ دوں گی؟ خود تو وہ مرتے پیچھے ان کے گھر والوں کو بھی انہوں نے عذاب ڈالا ہوتا ہے، خود تو وہ چین سے نہیں رہتے، نہ پیچھے گھر والوں کو انہوں نے سکون میں چھوڑا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کے بچے بن کے نا انسانوں کی طرح عید گزارا کریں، اور مہربانی آپ کے آگے ریکویسٹ ہے میری کہ بس کر دیں اور نہ عید کو عید سمجھ کے گزارے، اپنا کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ ابا جی کی بڑا سمجھ کے نہیں۔ تو اس لیے عید سمجھے، اور عید کو، جب کہ عید آپ کی صرف نہیں ہے، باقی سب کی بھی ہے، اور خدا نخواستہ خود بھی مرتے ہیں اور دوسروں کے بھی ساتھ کسی کا ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں، اس لیے انسان کے بچے بن کے بس عید گزارے۔ ابیرہ میم، یہ بتائیے گا کہ عید کی شاپنگ کر لی ہے آپ نے؟ ہاں جی، میری ساری شاپنگ ہو گئی ہے، آج میں اپنی فرینڈ کو شاپنگ کروانے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، شاپنگ میں جو ہے وہ کیا کیا آپ نے بائی کیا آج؟ میں نے آج تو کپڑے لیے ہیں، چوڑیاں لی ہیں کانچ کی، جو بڑی مشکل سے ملتی ہیں، اور میں نے یہیں اینم اسٹور سے اپنا ایک کنڈیشنر لینا تھا، وہ بائی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے جو ہے وہ 25 یا 26 روزے جو ہیں وہ گزر گئے ہیں، وہ روزے گزر گئے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ لائف کے اندر کچھ چینج آیا ہے یا نہیں آیا روزے گزرنے کے ساتھ ساتھ؟ روزے تو ویسے ہمیں صبر سکھاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے، روزوں سے سب کو ہی سیکھنی چاہیے، کیونکہ روزے کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، تو وہ چیز آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا میم، کوئی ایک میسیج جو عید کے حوالے سے آپ لوگوں کو دینا چاہیں؟ عید کے حوالے سے مل جل کے عید مناؤ، جو ضرورت مند جو لوگ ہیں نا رشتہ داروں میں خاص کر، آپ ان کو یاد رکھو، یہ میرا مین میسیج ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، اپنا نام بتائیے گا۔ جی میرا نام مزمل قریشی۔ جی مزمل بھائی، یہ بتائیے گا آپ نے عید کی شاپنگ کر لی ہے یا ابھی نہیں کی؟ یار شاپنگ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو شادی شدہ ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی زندگی میں کوئی لڑکی ہوتی ہو۔ ہمارے تو خواب میں بھی لڑکی نہیں آتی یار، تو ہم کیا کریں یار۔ یعنی کہ آپ کی ابھی شادی والا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی سین نہیں ہے ایسا؟ یار اگر ایسا ہوتا تو تمہیں کیا لگتا کہ میں اس لیبرٹی میں آتا؟ تو اچھا، یعنی کہ جو لوگ ابھی شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے کپلز کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ کے دل کے بھی جو ارمان ہوں گے وہ بھی تو کچھ کہتے ہوں گے کہ یار میری بھی شادی ہو جانی وہ چاہیے۔ دیکھو وہ دو کپل جا رہے ہیں یار، ان کو کوئی سمجھائے یار کہ اس مارکیٹ میں سنگل لوگ بھی ہوتے ہیں یار، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب آپ ایسے جاتے ہو یار، تم نہیں سمجھو گے نٹور لال۔ بالکل ایسے ہی ہے، تم نہیں سمجھو گے۔ اچھا مزمل بھائی، یہ ایک بات بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے 26 روزے گزر گئے ہیں، رمضان المبارک کے روزے گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے اوپر جو ہے وہ کوئی چینج آیا ہے یا نہیں آیا؟
यार अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक इतना बाबरकत महीना है यार, इस महीने में इतनी बरकतें, यकीन करो कि ये महीना जाते हुए जब सोचता ना कि बंदा ये महीना जा रहा है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसमें बरकतें इतनी होती हैं, इसमें घर वाले सारे फैमिली मिल के बैठ के एक दस्तरखान पे सुबह सहरी कर रहे होते हैं और रात को इफ्तारी कर रहे होते हैं। एक अलग से कमाल किस्म की वैब से इस महीने की, तो यार यकीन करो कि बाबरकत महीना है ये। अच्छा मुज़म्मिल भाई, एक और जो है वो सवाल है आपसे कि ईद के ऊपर जो है वो एक पैगाम आप देना चाहें लोगों को ईद के हवाले से। यार ईद के हवाले से ये पैगाम है कि भाई अपनी अपनी बंदियों के हाथ पकड़ के जाओ, कहीं भी जाना है तो दूसरों की बंदियों पे हाथ न डालो। और ये है कि आसपास सफाई रखें, अपने इर्द गिर्द के जो के गरीब गुरबा लोग हैं ईद उल फितराना ज़रूर अदा करें, ताकि आपके मुस्तहिक ये नहीं है कि ईद की नमाज से पहले आप फितराना दें। आप रमज़ान जब शुरू होता है तब आप फितराना अदा कर सकते हैं। तो फितराना अदा करने के वो वेट कर रहे होंगे कि जो लोग अपने लिए कपड़े नहीं खरीद सकते, शूज़ नहीं खरीद सकते, आप उनकी हेल्प करें ताकि आपकी हेल्प की वजह से उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। अरफान भाई ये बताइएगा कि ईद की जो शॉपिंग है वो आपने कर ली है या नहीं अभी की? कर रहे हैं अभी कर रहे हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं, तो जो है वो आपकी तो काम पे टांग रही होंगी शॉपिंग करवा के। बहुत ज़्यादा भाई कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो काम पे टांग रही हैं। तो अच्छा ये बताइएगा, खाली वाइफ को जो है वो शॉपिंग करवाई है या खुद भी की है? नहीं, खुद भी की है। अच्छा क्या क्या शॉपिंग में जो है वो लिया है आपने? पैंट शर्ट ली है, कुर्ता पजामा लिया है और बस यही चीज़ें, और वाइफ की जो चीज़ें हैं वही आपको। 26 रोज़े जो है वो गुजर गए हैं, तो रोज़े गुजरने के साथ साथ लाइफ के ऊपर कोई चेंज आया है या नहीं? बहुत ज़्यादा चेंज आया। किस तरह का चेंज आया वो भी बताइएगा। वेट कम हो गया है रोज़े रख के, और नमाज़ पढ़ने लग गए हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ा चेंज। अच्छा भाई ये एक मैसेज दीजिएगा ईद के हवाले से लोगों को कि जो लोग जो है वो वन बिलिंग्स करते हैं या नाराज़ हैं एक दूसरे के साथ, उनको जो है वो ईद के ऊपर कैसी ईद गुजारनी चाहिए, उनको इस हवाले से जो है वो मैसेज दीजिए। वन विलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये बुरी चीज़ है। और जो नाराज़ हैं एक दूसरे के साथ वो अपने दिल साफ़ करें और जो है आपस में हंसी खुशी रहे। शाइस्ता मैम ये बताइएगा, आपने ईद की शॉपिंग कर ली है या नहीं की? अभी तो कर रहे हैं, अभी तो हो रही है ईद की शॉपिंग, आपको पता है चांद रात तक रहती है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो 26 रोज़े गुजर गए हैं, ठीक है, वो रमज़ानुल मुबारक के 26 रोज़े गुजरने के साथ साथ ज़िंदगी के ऊपर कोई चेंज नज़र आया या नहीं आया? चेंज ऐसा चाहिए कि इबादत करते हैं, एक्स्ट्रा इबादत हो जाती है। वैसे तो सारा साल ही रहती है, लेकिन एक्स्ट्रा इबादत हो जाती है, तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा चेंज है। तो एक मैसेज अगर आप देना चाहें ईद के हवाले से लोगों को। ईद में खुशियाँ मनाएं, सबके साथ मिलके रहें, जो नाराज़ हैं उनको भी मनाएं और अच्छे तरीके से ईद की सेलिब्रेशन करें। उमर भाई ईद की शॉपिंग आपने कर ली है या नहीं की? तकरीबन कर ही ली है, काफ़ी हद तक कर ली है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो 26 रोज़े गुजर गए हैं, रोज़े गुजरने के साथ साथ जो है वो लाइफ के ऊपर कोई चेंज नज़र आ रहा है या नहीं? बस समझने के मुझे इतना चेंज नज़र नहीं आ रहा भाई। इतना है कि रमज़ान ख़त्म होगा, गर्मी है, वर्किंग के साथ साथ जो है ना रोज़ा थोड़ा बहुत होता है कि चले थोड़ा स्टे हो जाएगा, लेकिन रमज़ान जाते जाते ना थोड़ा दुख भी हो रहा है कि ज़ाहिर बात है पूरा महीना रमज़ान का होता है, इतना जो है बरकत का महीना है कुछ, और सब मिलते हैं, सहरी के टाइम उठना, ये जो चीज़ें हैं, और अफ्तारी का जो शोरगुल होता है, अफ्तारी के टाइम भागदौड़ होती है, जल्दी जल्दी घर जाना, अफ्तारी करनी है, मिल के अफ्तारी करनी है, ये चीज़ें मिस हो जाएंगी भाई, ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। फिर नेक्स्ट ईयर पे पता नहीं ज़िंदगी है कि नहीं है, अभी चीज़ें आ जाती हैं इसके साथ साथ। अच्छा भाई ये बताइएगा कि आप जो है वो ईद के हवाले से जो है वो हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं इनको कोई मैसेज देना चाहिए आप? देखें, ईद खुशियों का त्यौहार है। सबसे जो एक तो पहली बात होती है कि रमज़ान मुबारक का महीना आता है, रमज़ान में आप रोज़े रखते हैं, रमज़ान हमें जो है ना मेल जोल का दर्स देता है। हमारे कुरान भी कहता है कि जो एक शैतान भी कैद हो जाता है रमज़ान मुबारक में, तो जो जितने भी किसी किस्म की भी दुश्मनी है, जो भी एक खलिश होती हैं, इनको दूर करना चाहिए। ईद आती है, मिलजुलना चाहिए, आपको अपने दोस्तों और जो है रिश्तेदार उनकी तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिलना जुलना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं सियासी तौर पे भी बहुत ही ज़्यादा मुल्क जो है ना एक मुश्किल मराहिल में गुजर रहा है, आपको भी पता है जो मामलात हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगा अपने पाकिस्तानी अवाम से कि जो है ना एक दूसरे से मिल के रहें। सियासी इख्तलाफात एक जगह पे हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है। कोई नून लीग, कोई PTI, मैं हालांकि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, लेकिन फिर भी इससे हट के हम पाकिस्तानी हैं। हमें सबको एकजुट होना चाहिए, ना कि हमें किसी बाहर वाली बैरूनी ताकतों को हमें मौका देना चाहिए कि हमारे ऊपर जो है इंतशार पैदा करें। तो कोशिश करनी है
ठीक है, सियासी तलबा देख लिया, हम पाकिस्तानी पाकिस्तान रहना है, हम मुसलमान हैं, हमने एक दूसरे के जो है ना साथ देना है, जद्दोजहद करनी है, एक दूसरे के साथ खड़ा होकर, ना कि एक दूसरे के खिलाफ होना है, तू कौन और मैं कौन, ये चीज़ है। सजाद भाई ये बताइएगा कि ईद की आपने शॉपिंग कर ली है या नहीं की? बस कुछ बच्चों की है, कुछ रह गई है, इस तरह ही चल रहा है मामला अभी। तो ख़ुद की शॉपिंग कर ली है या नहीं, अभी बच्चों की है? हाँ नहीं, खुद की तो नहीं, रमज़ान है, निकला नहीं जाता रमज़ान में, तो इंशाल्लाह देखते हैं 1-2 दिन में। ठीक है, तो ये बताइएगा कि आज जो है वो 26वां रमज़ानुल मुबारक था, ठीक है, तो वक्त के साथ साथ जो है वो रमज़ान गुजर रहा है, तो रमज़ान गुजरने के साथ साथ लाइफ के ऊपर कोई चेंज नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? रमज़ान मेरा ख्याल इसीलिए आता है कि आप अपने आप को चेंज करें, और अगर आप फिर भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकते तो फिर ये तो अल्लाह की तरफ से ही है। लेकिन देखें ना, आज जितनी अच्छी रात है, ये बच्चों के आज दोपहर को शॉपिंग की थी, तो एक शूज़ थोड़ा सा छोटा था, तो वो चेंज करने आया हूँ, और बड़ी मुश्किल टाइम निकला है, क्योंकि आज ज़्यादातर टाइम मस्जिद में निकलता है, तो फिर भी बड़ी मुश्किल आना पड़ा है, मजबूरी में आना पड़ा है, वरना मैं कभी भी ना आता। अच्छा सर जी, एक जो है वो ईद के हवाले से लोगों को कोई मैसेज दे दीजिएगा। ईद मनाएं, अच्छे तरीके से खुशी के साथ मनाएं, लेकिन इस ईद के ऊपर उन लोगों को भी याद रखें जो बेचारे लोग कुछ ख़रीद नहीं सकते, जो बेचारे लोग इन खुशियों में मजबूरन शामिल नहीं हो सकते, जो किसी को बता नहीं सकते, ऐसे लोग, ये नहीं मांगने वाले तो उनका प्रोफेशन है, लेकिन वो जो लोग हैं जो मजबूर हैं, सफ़ेद पोश घरों में बैठे हैं, जो आप लोगों के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, ना किसी से मांग सकते हैं, ना किसी को कुछ कह सकते हैं, बराए मेहरबानी आप इन लोगों को अपने ईद की खुशियों में और हर खुशी में इन लोगों को शामिल करें, और ये सवाब भी है और ये लोगों का हक भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, अपना नाम बताइएगा। वसीम। वसीम भाई, आपने ईद की शॉपिंग कर ली है या नहीं की? नहीं भाई, अभी नहीं की क्या वजह नहीं की? भाई, शादी नहीं हो रही। क्यों? घर वाले कर नहीं रहे। अच्छा, यानी ये कि आपने सोचा है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैंने जो है ना वो ईद की शॉपिंग नहीं करनी। कोई हमें भरे सही, मैं अच्छा। छड्डी कौन नहीं, मैं अच्छा, ईद के हवाले से जो है वो कोई एक मैसेज देना चाहें लोगों को आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ साढ़े घर वाले साड़ा ब्याह कर दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, साड़ा ब्याह कर दो।